Hello students. So today in this video we are going to learn our chapter 1 of ninth class, how I taught my grandmother to read. That means the author here, I is author, and how she taught her grandmother. That means how she taught her grandmother how to read and write, gave her education, right? So before beginning this chapter, let's talk about the author. The author is Sudha Murthy, and she is still with us. When she was 12 years old, she used to live in a village in North Karnataka. और हर every week she reads a popular Kannada serial novel काशी यात्रा to her grandmother. पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर्स में ही नॉवल सीरियल्स में छपती थी, प्रिंट होती थी। तो सुधा मूर्ति भी अपनी ग्रैंडमदर के लिए वो स्टोरी हर वीक पढ़ती थी। एंड वंस व्हाट हैपेंड, शी वेंट टू अ विलेज इन नियर बाय विलेज टू अटेंड अ मैरिज। तो पीछे से जो मैगजीन आई, हर ग्रैंडमदर कुडंट रीड and she was missing the author too much. When she came back, she was crying before her. She was, matlab, tears were filled in her eyes. So that day, her grandmother decided that she would also learn to read and write, and the author helped her in giving her education. And Sudha Murthy is an Indian writer. Uh, her stories are often drawn from real life experiences, focus on simple living and high thinking, and the struggle and triumphs of ordinary people. So, with these words, let's begin our chapter. So, before beginning the chapter, we have some work to do. Complete the given word web. There's a question: why is it important to learn how to read and write? Everyone knows why is it important to learn how to read and write? To become independent, to become educated, right? We can write our own opinion in these. Next is read the questions given below and share your answer with your classmates and teacher. You can discuss these answers with your teacher and with your classmates. Which language do your grandparents or elderly relatives speak? कौन सी लैंग्वेज आपके ग्रैंड पेरेंट्स और बड़े लोग बोलते हैं? कुछ जैसे some people used to speak Haryanvi, Punjabi, right? And in second, how do they spend their time? How do you spend time with them? That means, suppose you have grandparents in your home, so how do they spend their time? Maybe in reading newspaper, watching television, or spending time with you also. And how do you spend time with them? You can also you play with them, like you play Ludo and chess with them. See, so you can have your own answers. What is your favorite experience with them? What is your favorite experience with your grandparents or elderly people? What is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do? Have you noticed कि sometimes the elder people in your family, uh, few things are there that they cannot do easily. That means maybe फोन चलाना होता है ना आजकल एल्डर पीपल को कम आता है बट दे enjoy when they when they see you or when they see that you are playing the game on the mobile phone and they love to enjoy this. So let's begin with the chapter. Next page is read the following passage. Match the highlighted words with their meaning given in the box below. We can see the passage is given here and these highlighted words have their meaning in this area. So we will read the passage and try to find out the meaning of these highlighted words. The casting for the protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role. So, casting for the main character. Annual play was going to be done, and they were looking out for the main character role. The protagonist is the main character of our school's annual play was done after a lot of debate, lot of discussion, as many good actors had auditioned for the play. बहुत सारे good actors थे जिन्होंने audition दिया था इस role के लिए. We have decided to present an episode from an inspirational story. Episode is the part. Okay, so what we can find out?
Yes. So we had decided to present an episode. That means we had decided to uh, a part of the story from an inspirational story. It was the life story of a group of children who worked with the community to spread literacy. Community is what? People living in one particular area. It was the story of the people who were living in a particular area, and our motive was to spread education among them. Every day we reach school early to practice with concentration. हर रोज हम सुबह स्कूल जाते थे, प्रैक्टिस करते थे बहुत कंसंट्रेशन से, एंड वी वेटेड ईगरली. कंसंट्रेशन इज नॉट फोकस, पूरे फोकस के साथ वी वेटेड eagerly for the final presentation, and we were very excited. All of us played our roles in a very convincing मैनर, बिलीवेबल. हम सब ने अपना रोल ऐसे निभाया, बिल्कुल बिलीव करने वाले, एज अवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस. हमारे जैसे थिएटर टीचर ने जैसे जैसे हमें डायरेक्ट किया था. तो वी गॉट ऑल द मीनिंग्स. रीडिंग फॉर मीनिंग. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. When I is Sudha Murthy, our author. She says कि जब मैं 12 years की थी तो मैं विलेज में रहती थी, नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. Those days the transport system was not very good. अब आपको पता है पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता था. It was not good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. भाई ट्रेन बहुत देर से आती थी या जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, तो उनको जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होता था वो आफ्टरनून में जाके मिलता था. और वीकली मैगजीन जो होती थी यूज्ड टू कम वन डे लेट. वो एक दिन लेट मिलती थी. All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers. हम सब लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, बस का वेट करते थे जो आती थी पेपर्स लेकर और वीकली मैगजीन्स लेकर, और पोस्ट में मतलब लेटर्स और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उन दिनों एक त्रिवेणी नाम की बहुत पॉपुलर राइटर थी. कन्नड़ लैंग्वेज में वो लिखती थी स्टोरीज. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. वो बहुत अच्छी राइटर थी. हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत इजी था. इजी टू रीड, बड़ा आराम से पढ़ा जा सकता था और कन्विंस कर देता था, हमें विश्वास दिला देता था जो भी वो लिखती थी. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो जो भी ऑर्डिनरी पीपल यानी साधारण लोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर होती थी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती थी. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कन्नड़ लिटरेचर में हमारी जो वो राइटर थी त्रिवेणी, वो बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. आज भी 40 इयर्स के बाद लोग उनकी नॉवेल्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. Here the pictures are given, looking so beautiful. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा. अब त्रिवेणी की जो राइटर थी उनकी एक नॉवल थी काशी यात्रा, was appearing as a serial in the कन्नड़ वीकली कर्मवीरा. देन पहले उन दिनों क्या होता था कि एक वीकली मैगजीन आती थी कर्मवीरा, उसके अंदर ये जो नॉवल है काशी यात्रा सीरियल में यानी थोड़ा थोड़ा उसका जो पार्ट था पब्लिश होता था हर वीक. इट इज द स्टोरी. अब इस स्टोरी में क्या था, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्जेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. अब इस स्टोरी में क्या था, ये स्टोरी एक ओल्ड लेडी की थी जो जिसकी बहुत बहुत कीन डिजायर थी, आर्डेंट डिजायर. उसकी बहुत इच्छा थी कि वो काशी घूम के आए और वाराणसी घूम के आए. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. भाई ज्यादातर हिंदू यही विश्वास करते हैं कि अपनी लाइफ में एक बार काशी जाएं और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करें तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, ये बहुत पुण्य का काम होगा.
और ये जो ओल्ड लेडी थी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, वो भी बड़ा इस विश्वास करती थी कि मैं भी जाऊंगी काशी। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और नॉवल में उसका जो स्ट्रगल है, उस ओल्ड लेडी का जो स्ट्रगल बताया गया है कि कैसे वो स्ट्रगल करती है वहां जाने के लिए। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. अब इस स्टोरी में क्या होता है, ओल्ड लेडी तो थी जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो काशी घूम के आए, लेकिन स्टोरी में एक और थी, यंग गर्ल थी, ऑर्फन गर्ल। भाई ऑर्फन जो अनाथ बच्चे होते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं थे, उस हु फॉल्स इन लव, जिनको किसी से लव हो जाता है, बट शी डिडंट हैव एनी मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए उससे। तो in the end, the old lady gives away all her savings without going to काशी। और स्टोरी के एंड में क्या होता है, वो जो ओल्ड लेडी थी जो बहुत टाइम से सेविंग कर रही थी कि वो काशी जाएगी, तो वो सारे पैसे किसको दे देती है, उस ओल्ड गर्ल को, सॉरी उस यंग गर्ल को। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो ये कहती है कि इस ऑर्फन गर्ल की, इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या काशी विजिट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बच्ची की खुशी। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब सुधा मूर्ति कहती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, उनकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था, कृष्टक्का, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेंसडे मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और हर बार हर वीक में उसी स्टोरी का अगला एपिसोड अपनी ग्रैंडमदर को पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और इस दौरान जब मैं उनको स्टोरी सुनाती थी, वो अपने सारे काम भूल जाती थी और स्टोरी को बड़ी कंसंट्रेशन से, बहुत फोकस के साथ सुनती थी। और फिर क्या होता था, लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और इतने ध्यान से सुनती थी कि वो पूरा का पूरा जो मैं उनको पढ़कर सुनाती थी, पूरा इंटायर टेक्स्ट अब बिना रुके सबको सुना सकते थे, रिपीट कर सकते थे। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। और वो हमेशा ना वो जो स्टोरी की जो ओल्ड लेडी थी, उसके अंदर अपने आप को देखती थी। वो मेन कैरेक्टर को वो सोचती थी मेरे जैसी लेडी है वो भी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. So कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जितना वो इंटरेस्ट रखती थी कि आगे क्या हुआ। तो जैसे ही मैं स्टोरी, मतलब जैसे ही वो मैगजीन आती थी हर वीक, वो मुझे इंसिस्ट करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, और कहती थी कि नेक्स्ट एपिसोड मुझे पढ़ के सुनाओ। अब क्या होता था, आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब वो क्या होता था कि जब मेरे से वो स्टोरी सुन लेती थी, वो अगले दिन कह सकते हैं, या उसके बाद वो जाती थी टेम्पल में। पहले की लेडीज क्या करती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी, वो मंदिर टेम्पल में जाती थी। और काशी यात्रा में, यानी स्टोरी में जो हुआ, वो अपने फ्रेंड्स को, टेम्पल में जो उनकी फ्रेंड्स आती थी उन सबको वो सारी की सारी स्टोरी रिपीट कर देती थी, सुनाती थी, कि उन सबको बताती रहती थी कि देखो आगे उस स्टोरी में क्या हुआ। और मीनवाइल हम सब बच्चे वहां पे खेल रहे होते थे, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। ये देखो, ग्रैंड मदर बैठी है और अपने फ्रेंड्स को सारी स्टोरी सुना रही है। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। वो जो लेटेस्ट एपिसोड मैं उनको सुनाती थी, वो अपने फ्रेंड्स को बताती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और उन दिनों मुझे समझ नहीं आता, भाई मैं तो 12 इयर्स ओल्ड थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इस स्टोरी को लेके इतना डिस्कशन क्यों होता है, डिबेट क्यों होता है। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माय कजन टू द नेबरिंग विलेज। अब एक बार क्या हुआ, मैं एक मैरिज अटेंड करने के लिए चली गई अपनी कजन्स के साथ, पास के ही विलेज में। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। भाई उन दिनों कुछ और तो होता नहीं था, तो वेडिंग ही एक ग्रेट इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। हम जो बच्चे हैं बहुत इंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एल्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी,
सब वो बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वैसे तो 1-2 दिन के लिए गई थी। सॉरी, वी मिस दिस लाइन। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम बहुत मजे से खाते पीते थे, हम बच्चे इतना एंजॉय करते थे। इन प्ले एंडलेसली, सेवरिंग सेवरिंग, एंजॉयिंग इट द एंजॉयिंग इट टू द फुलेस्ट। बहुत एंजॉय करते थे द फ्रीडम, बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि सारे के सारे जो एल्डर्स थे वो बिजी हो जाते थे भाई अपने अपने कामों में। मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, बट मैं वहां रुक गई 1 हफ्ते के लिए। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरी ग्रैंडमदर की आंखों में आंसू थे। I was surprised. बड़ी हैरान थी मैं, for I had never seen her cry, even in the most difficult situation. क्योंकि मैंने उनको कभी रोते हुए देखा ही नहीं था। डिफिकल्ट सिचुएशंस होती थी तब भी नहीं देखा मैंने। She used to face the difficult situations with brave. What had happened, man? क्या हो गया? I was worried. मुझे बड़ी टेंशन हुई। अव्वा, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई, हाउ द ऑथर यूज टू कॉल हर ग्रैंडमदर अव्वा। के पूछती है, अव्वा क्या सब ठीक है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। अव्वा का मतलब मदर ही होता है कन्नड़ लैंग्वेज में। शी नोडेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया बट डिड नॉट रिप्लाई, पर कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। फिर मैं भूल गई, मुझे समझ तो नहीं आया बट मैं भूल गई बाद में। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। भाई पहले हम सब छत पे ही सोते थे। मैं भी जब छोटी थी छत पे ही सोती थी। तो इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस लाइक दिस। ये देखो ऊपर सो रहे होते थे ऑफ आवर हाउस। इट वाज अ समर नाइट, गर्मियों की नाइट थी, एंड देयर वाज अ फुल मून। आसमान में चांद पूरा दिखाई दे रहा था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। ये देखो अव्वा मेरे पास आई और मेरे पास आके बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। ये देखो उन्होंने अपने प्यार से हाथ मेरे सर पर रखा। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। मुझे कुछ तो एहसास हो गया था कि वो मुझसे बात करना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे जल्दी छोड़कर चली गई थी। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। कोई नहीं था जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे गाइड कर सके। माय फादर वाज अ बिजी मैन। मेरे फादर बहुत एक बिजी पर्सन थे अपने काम धंधे में, एंड गॉट मैरिड अगेन, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों लोग यही सोचते थे कि भाई एजुकेशन गर्ल्स के लिए इतनी जरूरी नहीं है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल गई नहीं। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। शादी भी मेरी जल्दी हो गई और बच्चे भी। आई बिकेम वेरी बिजी, फिर मैं बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे वही ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, पोते पोती हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, फिर मैं और बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। मुझे हमेशा खुशी होती थी कुकिंग करना, सबको अच्छा अच्छा खिलाना। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड मदर स्टडीड वेल। मुझे थोड़ा रिग्रेट तो होता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन मैं श्योर थी कि भाई मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए समथिंग इज गिवन टू अस। कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट वन ऑफ द स्टोरी। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको रीजन बतानी है अगर इफेक्ट बता रखा होता है, रिजल्ट बताया हुआ। और अगर रीजन दे रखी है तो हमें इसका क्या इफेक्ट होगा वो हमें बताना है। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। अब हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि मॉर्निंग पेपर्स लेट आते थे और वीकली मैगजीन भी एक दिन लेट आती थी। व्हाई? बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज वेरी पुअर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो फैसिलिटीज थी दे वर नॉट इन गुड कंडीशन। सेकंड इज द ग्रैंडमदर कृष्टक्कन नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंडमदर जो थी मेरी वो कभी स्कूल नहीं गई। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता था? इसका इफेक्ट ये हो सकता है हमारा, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, she remained illiterate and could not read or write। वो
भाई स्कूल कभी नहीं गई तो इसलिए हमेशा इलिटरेट रही। थर्ड वन इज शी वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड। वो स्टोरी में बड़ी इंटरेस्टेड रखती रहती थी, जो भी मैं उनको स्टोरी बताती थी, और वो पूरी की पूरी स्टोरी वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। क्यों? बिकॉज द नरेटर रीड द स्टोरी काशी यात्रा अलाउड टू हर ग्रैंडमदर एवरी वीक, or we can also say कि she used to feel the main character in her own identity. Fourth one is the narrator went to a wedding for a week. भाई एक बार जब नरेटर शादी में चली गई तो उसका क्या इफेक्ट हुआ पूरे हफ्ते के लिए जब वो चली गई थी। तो what happened? The grandmother could not read Kashi Yatra by herself and felt helpless and sad. वो काशी यात्रा पढ़ नहीं पाई और बड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी। नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। तो इसका रीजन क्या था? बिकॉज देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज ड्यूरिंग ग्रैंड मदर्स चाइल्डहुड, और people also used to think that the education for girls was not essential. And last one is the grandmother regretted not going to school. ग्रैंडमदर रिग्रेट तो करती थी नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ, तो हमने लास्ट में पढ़ा था नहीं, बट शी डिसाइडेड टू लर्न टू रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, और बट शी वाज श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन would surely be reading. So now let's begin with the part 2. I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62-year-old ग्रैंडमदर जो मुझे सुना रही है एक 12-year-old गर्ल स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द, मतलब रात को, आधी रात को मुझे अपनी स्टोरी सुना रही है। समझ नहीं आ रहा था। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। लेकिन मुझे ये पता था मैं उनको एक्सट्रीमली लव करती थी, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, कोई ना कोई रीजन होगी व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे आधी रात को बात कर रही है। I looked at her face. मैंने उनके फेस की तरफ देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears. वो बिल्कुल उदास दिखाई दे रही थी, अनहैप्पी, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। She was a good looking lady who was usually always smiling. वो अच्छी दिखने वाली लेडी थी और हमेशा स्माइल करती रहती थी। Even today, I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं जब वो टाइम याद करती हूँ when she was talking to me, तो मुझे आज भी याद आ जाते हैं उनके फेस के एक्सप्रेशन। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड्स। मैं आगे को झुककर और मैंने उनके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? मैंने अपनी ग्रैंडमदर से बोला कि रो मत, क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी तरह? यस, आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे, करमवीरा केम एज यूजुअल। तुम्हें पता है, जब तुम गई हुई थी, यहाँ नहीं थी, तो वो करमवीरा न्यूज़पेपर आया एज यूजुअल। आई ओपन सॉरी मैगजीन थी करमवीर। मैंने उसको ओपन किया। आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। मैंने मैगजीन खोली, मैंने उसमें पिक्चर्स देखी। देखो पिक्चर्स होते हैं जैसे इसमें भी दी हुई है साइड बाय साइड। तो उस काशी यात्रा की नॉवल में भी जो सीरियल में आती थी उसमें भी पिक्चर्स होती थी उससे रिलेटेड। तो मैंने वो पिक्चर्स देखी, एंड आई कुड नो, मुझे कुछ समझ नहीं आया जो भी लिखा होता। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। बहुत बार मैंने कोशिश की, मैंने अपने हैंड्स को रब किया पेजेस पर, ये सोच के कि शायद मुझे कुछ समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ, बट आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। भाई, इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, ये पॉसिबल नहीं था जब तक कि मैं पढ़ना लिखना ना जानती हूँ। मैं तुम्हारा वेट किया बहुत ही ईगरली, एक्साइटेडली, मैंने तुम्हारा वेट किया वापस आने का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी, फिर मुझे पढ़कर सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। एक बार तो मुझे लगा मैं वहीं आ जाऊं जहाँ पे तुम गई हुई हो, और कहूँ कि इसको पढ़ के सुनाओ। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मुझे लगा मैं किसी से भी पढ़वा सकती थी गाँव में, विलेज में, लेकिन मुझे ऐसा करने में बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, शर्म आ रही थी।
आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे बड़ा डिपेंडेंट फील हुआ एंड हेल्पलेस। मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रही थी। वी आर वेल ऑफ, भाई हमारे हम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब पैसा वैसा हमारे पास सही है। बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन वेल ऑफ होने का क्या फायदा जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। अव्वा ये सब बताती गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या जवाब दूं। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब ये लाइन बोली दादी ने कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन। और मैंने ये सोच लिया कि दशहरा वाला दिन डेडलाइन होगा जब मैं सीख चुकी होंगी, और उस दिन मैं घर में एक सरस्वती पूजा रखूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, और उस दिन मैं पूरी नॉवल अपने आप पढ़ पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके अंदर डिटर्मिनेशन देखी, उनके फेस पे एक दृढ़ निश्चय, फिर भी मैं हंस रही थी उनके ऊपर। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। अव्वा, आप इस 62 इयर्स एज में सीखोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। आपके देखो सारे बाल सफेद हो गए हैं, आपके हाथों पे कितनी झुर्रियां हैं, चश्मा पहनती हो और कितना काम करती हो किचन में। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। मैं भी बच्चों की तरह उनका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। देखो कितनी अच्छी बात बोली है उनकी, उसकी दादी ने, कि एक अच्छे रीजन के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकते हो, किसी भी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत मेहनत करूंगी, सबसे ज्यादा देन एनीबडी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूंगी ये काम, क्योंकि लर्निंग के लिए देर इज नो एज बार। एज इज जस्ट अ नंबर, हमने सुना है ना। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अब नेक्स्ट डे से ही मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा, उसकी जो दादी थी, वो कहती है कि मेरी स्टूडेंट बहुत वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जितना होमवर्क वो करती थी वो अमेजिंग था। मतलब जितना मैं देती थी उससे ज्यादा ही करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइड। वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट लिखती भी थी एंड रिसाइड बोलती भी थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एक ही टीचर थी, ओनली टीचर। And she was my first student. First student means later on Sudha Murthy also taught many of the students, but her grandmother was her first student at the age of 12 years she was. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. और उस दिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं एक टीचर बनूंगी, कंप्यूटर साइंस टीचर, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। अब दशहरा फेस्टिवल डे आ गया। Secretly, I bought काशी यात्रा which had been published as a novel by that time. भाई पहले तो काशी यात्रा के एपिसोड्स आते थे करमवीर मैगजीन में, है ना, हर बार। लेकिन अब वो एक नॉवल बनकर पब्लिश हो गई थी। तो मैंने भी क्या किया, मैं उनके लिए काशी यात्रा खरीद के लाई, और उन नॉवल के रूप में जो पब्लिश हो गई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी ग्रैंड मदर ने दशहरा वाले दिन पूजा वाली जगह पे मुझे बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक का कपड़ा दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा किया। शी बेंट डाउन, वो नीचे झुकी, टच्ड माय फीट, और मेरे पैर छुए। आई वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं बहुत हैरान हो गई। टेकन अबैक, देखो ये मीनिंग दिया हुआ है, सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मुझे इतना वो नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, एंड टेकन अबैक। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। अब भाई हमारे कल्चर में क्या होता है कि बड़े लोग छोटे लोगों के, बच्चों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हमने तो भाई अपने गॉड के, बड़ों के और टीचर्स के पैर छुए हैं। वी कंसीडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई ये हमारे लिए रिस्पेक्ट की बात होती है, उनके पैर छूना। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये एक अच्छा ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया था। इट वाज नॉट करेक्ट, मुझे लगा ये नहीं सही नहीं है।
शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। उन्होंने अपने रिप्लाई में क्या बोला कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही, अपने टीचर के लिए जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। मतलब अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और इतने कम समय में उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। अब मेरी ड्यूटी बनती है अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड? ये क्या नहीं लिखा हुआ हमारे धर्म शास्त्रों में कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज? चाहे वो कोई भी हो हमारा टीचर, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने भी फिर बदले में उनको नमस्कार किया, उनके पैर छू के, और अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया था? शी वो जो उसके लिए लेकर आई थी, काशी यात्रा नॉवल। She opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name. जैसे ही उन्होंने उसको ओपन किया, उन्होंने फटाफट से पढ़ लिया काशी यात्रा टाइटल, और लिखी गई किससे? त्रिवेणी से। Publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. जब उन्होंने इतनी स्पीड से वो खोलते ही उसको पढ़ लिया, तब मैं समझ गई थी कि मेरे स्टूडेंट पास हो गया with flying colors. So the chapter is completed. Now in our next video, we will discuss all the question answers, back exercise of the chapter. Right? Okay, students, if you feel the video is useful for us, please help me and please like, share and subscribe my channel. Thank you.